Akhtar has spoken out on the UP Kavad Yatra diktat, slamming it as the very popular lyricist has compared this Kavad Yatra diktat to what happened in Nazi Germany. Javed Akhtar saying that Nazis used to make marks on shops and houses, on Jewish shops and houses, and similarly this diktat that's coming from the administration also is talking about identifying which religion the person belongs to. Javed Akhtar is referring to the diktat that's come in from the UP administration, saying every shop, every establishment along the Kavad Yatra route must go ahead and mention the name of the owner. And many believe that is to go ahead and highlight their religious identity. Javed Akhtar therefore is questioning what is the need to actually showcase the owner's name along the Kavad Yatra route. Abhishek Mishra is joining us with more details on this. Abhishek, a whole lot of outrage right now over the decision by the UP administration. Javed Akhtar right now also questioned it, saying essentially, what's the need to display the owner's name? Why this kind of a diktat, and even comparing it to Nazi Germany? Well, certainly, Akshita, and these reactions are coming in after the implementation of the circular which has been released by the district magistrates of respective district, specifically in Muzaffarnagar, where there was an appeal for all these shopkeepers to make sure that their identification, the name of the shop is proper. It got politicized with the fact that how the opposition parties as well, Samajwadi Party, Congress and AIMIM, Assaduddin Owaisi was also referring it as a narcissist or something which is a forceful action. But the government and the ministers and the administration believes that there is a need to have a transparency and clarity on the stake of these shops. In Kavad Yatra specifically, when thousands and lakhs of devotees or these Kavad Yatris used to come, and whenever they are there on the route, they utilize such items, or they go to such restaurants or such eating places. So there should be a clear identification. It is what has been said. Now the opposition is also referring it as... Abhishek, just stay with me. We're getting in live reactions right now. Here's what Muslim clerics have to say about this decision. और चिमियानंद का क्या मामला हुआ था, बहुत सारे बाबा इस तरह के इन कांडों में रहते हैं। क्योंकि ये जो देखिए, इस्लाम में और हिंदू धर्म में एक फ़र्क ये है कि हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि आदमी बिना शादी करे अपना जीवन व्यापन कर ले। शादी इंसान के लिए ज़रूरी है, उसकी बहुत सारी तमन्नाएं, इच्छाएं दिल में हैं, जो हैं वो इंसानियत के तौर पर हैं, क्योंकि हम इंसान हैं, हमारे अंदर इनबिल्ड हैं ये चीज़ें। हम कहें जी हम तो शादी नहीं कर रहे हैं, हम तो बाबा हैं, भक्ति में लीन हैं। All right, we'll get you the reaction there from Maulana Sajid Rashidi on this decision that's been taken by the UP administration. Let me just go back to Abhishek Mishra on this entire issue. But before that, let me tell you exactly what this debate is that's playing out. The Uttar Pradesh police issued a notification requiring all eateries along the Kavad Yatra route to display the name of the owners of the eatery. As per the Uttar Pradesh police, the directive aims to prevent any confusion among the Kavadiyas and applies to all food establishments, hotels, dhabas, roadside carts. All of them will have to put the name of the owner. The Muzaffarnagar police emphasized that everyone is voluntarily complying with the notification, and yet it's a compulsory rule that's been put in place. This move has sparked significant controversy, with the opposition alleging that this is being done to target Muslim-owned shops. The Congress has labelled it as state-sponsored bigotry, while Owaisi has described the directive as food apartheid. This has led to a heated debate over implications and motivations behind the notification. देखिए, कांवड़ की तैयारियां शुरू हो गई हैं और हमारे जनपद में लगभग 240 किलोमीटर का कांवड़ मार्ग है। इसमें जितने भी खान पान के दुकानें हैं, चाहे वो होटल, ढाबे, ठेले, जहां से भी कांवड़िए अपनी खाद्य सामग्री खरीद सकते हैं, उन सबको ये निर्देशित किया गया है कि अपने प्रोप्राइटर के या काम करने वालों के नाम जरूर डिस्प्ले करें। ये इसलिए ज़रूरी है ताकि किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन किसी भी कांवड़िए के अंदर ना रहे और ऐसी स्थिति ना उत्पन्न हो कि कहीं कोई आरोप प्रत्यारोप हो और बाद में कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो। इसलिए ऐसा निर्देश दिया गया है और सब इसको अपनी स्वेच्छा से इसका पालन करें। जैसे लगाएगा, क्या इससे लाभ मिलेगा या आप लोगों को नुकसान होगा? जैसे कि आगे कावड़ भी है, बस अब लाभ तो उन्हें पता चलेगा जी बाद में, क्या नाम उसका, क्या लाभ होगा इससे, क्या नहीं होगा। बंदी हो जाएगा कावड़ में तो डेली लगने की नहीं फिलहाल। लेकिन जो फल खरीदेगा नाम देख के फल खरीदेगा, नाम देख के फल खरीदेगा बस। हाँ, कहने लगे मुसलमान है, नाम निसार है इनका।
Mr. Dinesh Sharma, former Deputy Chief Minister of Uttar Pradesh, now member of the Rajya Sabha, is joining us on this broadcast. Sharma ji, नमस्ते. आपको क्या कहना है इसके बारे में? कावड़ यात्रा में जितने भी शॉप्स है, जितने भी रेस्टोरेंट्स है, उन सब पे बोर्ड पे ओनर का नाम भी लिखना चाहिए. नहीं, देखिए, ये वैसे तो ये कोई सरकार का आदेश नहीं है. स्थानीय स्तर पर हमेशा से होता आया है कि जब तीज त्योहार होते हैं और कोई अगर धार्मिक संगठन या धार्मिक कोई संस्था किसी प्रकार का अनुरोध करती है तो उस अनुसार जो स्थानीय प्रशासन होता है वो कार्रवाई करता है. एक सामान्य प्रक्रिया है कि जो दुकानें होती हैं, पहले आपने देखा होगा कि जो भी इनका बोर्ड होता है उसमें मालिक का नाम दर्ज रहता था. श्रावण माह चूंकि एक पवित्र माह है और इसमें तमाम प्रकार की खान पान के संबंध में व्यवस्थाएं और मान्यताएं हिंदू धर्म की हैं, तो हो सकता है किसी धार्मिक संस्था ने जिला प्रशासन से कोई अनुरोध किया हो और जिला प्रशासन ने उसके अनुसार, ये सामान्य प्रक्रिया है कि मालिक का नाम लिखा हो. इसमें ये कहीं नहीं दिया है कि कोई उन दुकानों से सामान खरीदेगा या नहीं खरीदेगा. ये ऑर्डर नहीं है. जिसकी मर्जी हो खरीदो, जिसकी मर्जी हो ना खरीदो. लेकिन शर्मा जी, यही सवाल उठता है कि इसका मतलब ये मूव का प्रेरणा क्या है? अगर आपने एक कंपलसरी ऑर्डर दिया है कि सबको उसका ओनर का नाम लिखना चाहिए, तो फिर ऑपोजिशन यही कह रहे हैं कि आप मुस्लिम लोगों को टारगेट कर रहे हो. नहीं, इसमें टारगेट तो तब होता जब ये कहा जाता कि हिंदू के वहां से लो और मुस्लिम के वहां से ना लो. तब शायद ऐसा अगर ऑर्डर करता तो जिला प्रशासन के खिलाफ कठोर कार्रवाई होती. अगर नाम लिख रहे हैं दिनेश शर्मा जी, अगर नाम लिख रहे हैं तो आप वो संदेश ही दे रहे हैं, वही संदेश दे रहे हैं. इसको दूसरी तरफ देखिए, अगर कोई धोखे से कोई दूसरा नाम रख के अगर किसी चीज को बेच रहा है तो ये भी गलत है. और अगर वो अपना नाम लिख रहा है तो इसमें आपत्ति काहे की है? मैं समझता हूँ इसमें लोगों के पास ऑप्शन है कि लोग खरीदे या ना खरीदे, उनके पास ऑप्शन है. तो क्या खरीदे या ना खरीदे, वो जो खरीदे या ना खरीदे, क्या वो डिसीजन इस पे लेना चाहिए कि कौन ओनर है शॉप का? क्या वो मुसलमान है या हिंदू है, उससे ऊपर देखकर डिसीजन लेना चाहिए कि कौन से शॉप से खरीदना है? नहीं, ये तो अभी भी हर व्यक्ति के पास ऑप्शन होता है कि वो किस दुकान से खरीदे, वो ए दुकान से खरीदे कि बी दुकान से खरीदे. अब इसमें हिंदू और मुसलमान का भाव कहीं पर कहा नहीं गया कि आप हिंदू के दुकान से ही लीजिएगा या मुस्लिम की लीजिएगा. अगर ऐसा करते तो आपत्तिजनक है. लेकिन अपना मकान मालिक का नाम लिखना, ये तो आपको सेल टैक्स में भी लिखना, इनकम जीएसटी में भी लिखना पड़ता है. तमाम प्रकार की जो आप स्वीकृति लेते हैं उसमें भी लिखना पड़ता है. जो आपने स्वीकृति जिस नाम से ली है, अगर उसको आप फर्म को उसके साथ लिख देंगे तो आपत्ति इसमें कहाँ से आ गई? जी, दिनेश शर्मा जी, बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए. यू हर्ड फ्रॉम द बीजेपी डियर डिफेंस. लेट्स ब्रिंग इन इमरान मसूद ऑफ द कांग्रेस राइट नाउ, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम कांग्रेस. इमरान मसूद जी, बीजेपी ये कह रहा है कि ये हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, हम बस एक चॉइस दे रहे हैं कवड़ियास को कि उनको 100% फेयरनेस के साथ एक डिसीजन ले सकते हैं कि कहां पे खा सकते हैं. देखिए, दिक्कत ये है कि भाजपा के लोग कहते कुछ है, करते कुछ है. कहाँ गया वो सबका साथ सबका विकास? अब आप बात करेंगे कुछ और करेंगे कुछ. आप नाम लिखवा रहे हैं, इस तरह से आइडेंटिफाई करा रहे हैं, तो मतलब आप मैसेज क्या देना चाह रहे हैं? आप नाम कुछ भी ना दे, मैसेज तो आपने दे दिया ना जो देना आपको. सिर्फ नफरत की बात क्यों हो रही है मुल्क के अंदर? मुल्क के अंदर मोहब्बत की बात भी हो सकती है, अमन की बात भी हो सकती है. मुल्क के अंदर जो मसले मसाइल है, जो बेरोजगारी का मुद्दा सबसे बड़ा है. कल टाटा ने 600 लोडर की पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली. 25,000 लोग चले गए, आगे मकदम. हाल बेरोजगारी के अंदर नौजवान तबाह और बर्बाद हो गया. उसके ऊपर बात नहीं करेंगे. इधर उधर के मुद्दे की बात से हटाने के लिए इधर उधर के नए इश्यू पे छोड़ना शुरू कर देंगे. नहीं तो मसूद जी, अभी दिनेश शर्मा जी से बात की हमने, जिसमें शर्मा जी ने ये बता रहे थे कि ये डिसीजन इसलिए लिया क्योंकि कुछ लोग नाम, शॉप का नाम जो है वो बदल कर फिर कवड़ियास को चीट करते हैं, धोखा देते हैं. देखिए, उन्हें जो बदलकर चीट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, मैं उस विषय पे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, अगर कोई चीट कर रहा है उसके लिए कानून है देश के अंदर. कानून के तहत उसमें कार्रवाई कीजिए. कानून के तहत उसमें कार्रवाई होनी चाहिए. लेकिन आप जो मैसेज देने का काम कर रहे हो, इधर उधर की बात मत करिए, बात मुद्दे की करिए. किसान तबाह और बर्बाद हो गया देश का.
आपने किसानों से वादे किए थे, किसानों का वादा आप पूरा नहीं कर रहे। नौजवान से वादा किया, नौजवान के वादे आप पूरे नहीं कर रहे। प्रधानमंत्री जी ने ऐलान किया कि 8 करोड़ का रोजगार सर्जित हो गया। अगर 8 करोड़ लोगों को रोजगार मिल गया होता तो टाटा एयरलाइंस के दफ्तर में भगदड़ न मची होती। लोग परेशान हैं इस देश के अंदर। इस परेशानी के ऊपर चर्चा होनी चाहिए।